Hare Krishna. We begin session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Welcome to all of you. So last class we're continuing to do chapter 4, and in chapter 4 we have now entered a section 4. Chapter 4 earlier we learned कुछ सप्ताह पहले हमने सीखा था कि अध्याय 4 को 4-5 भागों में हम विभाग कर सकते हैं। तो अभी हम चौथे भाग में पहुंच गए, चौथे अध्याय के चौथे भाग में। From the shloka 25 onwards we have started doing section 4. And what does section 4 cover? It covers the fact that sacrifices lead to transcendental knowledge. मतलब यज्ञ और जो हम आचार करते हैं उससे हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। And shloka number 30 to 33, we have started shloka 30 and 31 yesterday. I mean last class हमने खत्म किया 31 तक, तो 30 से 33 तक क्या कवर कर रहे हैं? कृष्णा describes the broad principle, purpose and essence of यज्ञ। तो कृष्णा हमें बोधन कर रहे हैं कि यज्ञ का लक्ष्य क्या है, यज्ञ का सार क्या है और यज्ञ का तर्क क्या है, क्यों यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ करने से क्या फायदा होगा और यज्ञ करने का लक्ष्य क्या है। एंड और बहुत सारे यज्ञ के बारे में हमने अध्ययन किया, द्रव्यमय यज्ञ, दानमय यज्ञ, ध्यान यज्ञ, फिर बहुत सारे, और फिर हम फाइनली भक्ति योग या भक्ति यज्ञ के बारे में बात किया। सो इन द लास्ट श्लोका what is the essence we are taking in shloka number 31? Failure is not a disaster. मतलब असफल होना एक दुरंत नहीं है हमारी जिंदगी में। Failure to try is, जब हम कोशिश करना छोड़ देंगे, ये हमारा जीवन का दुरंत है। कोशिश करके हार जाना ये दुरंत नहीं है। And the first result of yajna is purification. और यज्ञ करने का पहला ही जो उपयोग हमें मिलेगा वो शुद्धिकरण है, हम शुद्ध हो जाते हैं। So we have read long ago, sense control is the foundation of liberation. इंद्रिय संयम, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ये नींव है शुद्धिकरण के लिए। और जब हम यज्ञ करना प्रारंभ करेंगे उसका पहले स्तर पे ही शुद्धिकरण प्रारंभ होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब समय के बाद शुद्धिकरण प्रारंभ होगा, यज्ञ करने के पहले दिन से ही हमारा शुद्धिकरण प्रारंभ होगा। Start getting purified from the day one of the yajnas that we are practicing. In Kali Yuga, we learned the easiest yajna is Sankirtana yajna, and in that especially chanting the holy names of the Lord. In that especially chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So all of us are
some kind of specialist. No, not all yagnas lead to liberation. सारे यज्ञ मोक्षदायक नहीं है, या फिर उतने ही मात्र में और उतने ही तेजी से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा. लेकिन भक्ति योगा इज लाइक एलिवेटर. बाकी सब मार्ग टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से आ सकता है, घूम फिर के आ सकता है. कुछ रास्ते स्टेयरकेस की तरह है, कुछ रास्ते एस्केलेटर की तरह है. लेकिन भक्ति योग का मार्ग, भक्ति योगा इज लाइक एन एलिवेटर. इट टेक्स अस इन अ fraction of a few years of practice that we will reach the topmost goal, the topmost foundation, the topmost place where the bhakti yoga is going to take to us is to the lotus feet of Krishna. So लेकिन हमारे जिंदगी में, in our lives, why we don't see rapid purification? क्योंकि हम सब we are all eye specialists. आई स्पेशलिस्ट मतलब आई, ये इस चीज का स्पेशलिस्ट है हम, मेरे बारे में, आई, मी, माई सेल्फ, इसका स्पेशलिस्ट है हम. सो वी आर ऑल स्पेशलाइज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर द ओन सेल्फ. तो इसलिए हमारे जीवन में शुद्धिकरण बहुत विलंब हो जाता है या फिर प्रारंभ ही नहीं होता है, और हम ब्लेम करते हैं हमारे सर्कमस्टेंसेस को. So it is not about circumstances, it is about us. So और कुछ लोग ऐसे हैं, I, me, myself और me alone. It is me alone. और किसी को मतलब कुछ नहीं मिलना चाहिए, जो भी मिलना है मुझे मिलना चाहिए. मतलब they become completely selfish also. तो ऐसे लोगों को बार बार इस घोर संस्कृति में जन्म लेना पड़ेगा. So the highest level of sacrifice, तो सारे यज्ञ याग का जो ऊंचा स्तर, मतलब what is the ultimate goal of all of this? The ultimate goal is Krishna prema, love of Krishna. कृष्ण प्रेम को पाना, यही सारे यज्ञ का लक्ष्य है. उपलक्ष्य अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य लक्ष्य है सारे यज्ञों का, वो कृष्ण प्रेम हमारी जिंदगी में लेके आना. And higher the cost for one's sacrifices, greater is the happiness and the fulfillment one experiences. और जितना हम कृष्ण प्रेम पाने के ही लक्ष्य रखेंगे, बाकी उपलक्ष्यों को छोड़ देंगे, other side effects we are not going to concentrate on, we are going to concentrate only on Krishna prema, then what happens? Greater will be the happiness we will achieve. तो जो आनंद हमारी जिंदगी में आएगा, वो मतलब it will be of a greater magnitude, and the fulfillment of one's experience is also going to be greater. तो जो तृप्ति हमें मिलना चाहिए जिंदगी में, वो अधिक मात्रा में मिलेगा जब हम भक्ति योग में जाएंगे, क्योंकि उसका मेन लक्ष्य, उपलक्ष्य सब कृष्ण प्रेम को पाना है. And sacrifice means giving out something little for something great. तो जब हम कुछ भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी परफॉर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सो दैट वी गेट अ हायर गेन. फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा खेल कूद छोड़ के एग्जाम के लिए पढ़ता है, एग्जाम के टाइम में तो कुछ, इफ नॉट ऑल, बहुत सारे बच्चे खेल कूद छोड़ के और एटलीस्ट उसको कम करके पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं. तो ये भी एक ऑस्टेरिटी है, ये सैक्रिफाइस है. ये सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं? फॉर अ ग्रेटर गेन. तो इस वक्त हम थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे हमारे एंजॉयमेंट का, कुछ समय के बाद हमें ग्रेटर एंजॉयमेंट का मौका मिलेगा. व्हाई? बिकॉज वी आर गेटिंग अ ग्रेटर गेन. सो वी विल मूव फर्दर. वी हैव टू डू श्लोका नंबर 32 and onwards today. So shloka number 32 is evam bahuvida yajna vitata brahmano mukhe karmajan vidditan sarvan evam gnatva vimokshase. So evam bahuvida yajna, bahuvida yajna का मतलब क्या है? Various kinds of sacrifices, अनेक तरह के जो sacrifices है, यज्ञ है. एवं बहुविधा यज्ञ,
वितता ब्राह्मणों मुखे, इसका अर्थ क्या है? सो दिस श्लोका इज टीचिंग अस नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइस कैन लिबरेट अस। केवल यज्ञ के बारे में ज्ञान पाना ही हमें मुक्ति दे सकता है। यज्ञ करना दूर की बात, यज्ञ के बारे जानकारी रखना ही हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। by knowing very clearly what is the principles and the use of yajna. So what is the meaning of this shloka? इस श्लोक अर्थ क्या है? All these different types of sacrifices एवं बहुविधा यज्ञ, ये सारे यज्ञ जो मैंने आपको सुनाया हे अर्जुन, कृष्ण बोल रहे, are approved by the Vedas विततो ब्रह्मणो मुखे। ये वेद शास्त्र में मतलब इसको अप्रूव किया गया है, मतलब इसको अधिकृत करके छोड़ा है यहाँ पे। And all of them are born of different types of work. कर्मजान विद्दितान सर्वान, तो ये सारे यज्ञ में भी कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। ऐसे ही चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। Knowing them as such एवं ज्ञात्वा, इसको जानने से ही you will become liberated। ज्ञात्वा विमोक्ष से, केवल यज्ञ के बारे में ज्ञान पाना ही मोक्षदायक है। यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है, यज्ञ के बारे में ज्ञान पाना ही मोक्षदायक है। सो व्हेन द थिंग्स आर सो इजी, अगर लोग भगवत गीता को पढ़ेंगे भी नहीं जिसमें सारे यज्ञ के बारे में बताया गया है, और कृष्ण बोल रहे हैं कि जस्ट बाय नोइंग हिज नेचर, हिज बर्थ एंड हिज अपीयरेंस, हिज एक्टिविटीज आर ऑल divine, transcendental, one can become liberated, he can go back to Krishna loka। केवल जानने से, कोई पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है, कृष्ण के बारे में जानने से कृष्ण लोक को जा सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कृष्ण के बारे में जानने मात्र से ही कृष्ण लोक हम जा सकते हैं, कृष्ण को पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो फिर पूजा क्यों करना है? क्यों आप बोलते हो मंदिर आओ, मंगलारती अटेंड करो, दर्शनार्थी अटेंड करो, घर में आप ऑल्टर में पूजा करो? बिकॉज वी शुड नॉट बी अनग्रेटफुल टू द लॉर्ड। मतलब भगवान के प्रति हमें भी कुछ जताना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब सिर्फ लेते रहेंगे भगवान से। भगवान को भी हम क्या दे सकते हैं? देना भी है, हम क्या दे सकते हैं? जो भी दिया है हमारी जिंदगी में सब भगवान ने ही दिया है। So everything that is given to us, everything that is there in our life is given by the Lord himself. So what is there that I can give to the Lord? It is all his only। फिर भी जैसे कि घर में पिताजी छोटे बच्चे को कुछ देते हैं, तुम्हारे लिए है, तो वो उस बच्चे का हो गया, बाकी कोई घर में उसको मतलब यूज नहीं कर सकते, वो उसका व्यक्तिगत चीज है। ठीक वैसे ही बट दिलाया किसने? फादर ने। ठीक वैसे हमारे जिंदगी में भी जब हम भगवान से कुछ स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सब भगवान का ही है। When we get some government facility, all that thing belongs to the government, but it has been given to us for usage। I can see that Rekha Bansalji has raised her hand. Looks like she has a question। Rekha Mataji, in the last 2 minutes, I will open up the platform and I will specifically ask you to ask the question. Okay, so we'll go further। The different types of sacrifice as discussed above are mentioned in the Vedas। तो सो different types of, तो अनेक तरह के यज्ञ क्यों है? क्योंकि अनेक तरह के लोग हैं, सबको एक ही जैसा रुचि नहीं होता है, तो वेद सबको अकोमोडेट करता है। ऐसा नहीं कि रिजिड है वेद कि आपको यही करना है, नहीं आपको ये नहीं करना है तो आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते, लेकिन इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा कृष्ण प्रेम पाने के लिए, इसको घूम फिर के आना पड़ेगा, इससे आप सीधे सीधे जा सकते हैं, इससे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा सकते हैं। सो देयर इज अ स्कोप फॉर एवरीबॉडी। वेदास डज नॉट रिजेक्ट एनीवन। सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म किसी को भी रिजेक्ट नहीं करता है। इवन अ मीट ईटर, ड्रंकर्ड,
और a person who is a butcher, इन सबको भी वो अपने दायरे में लेता है, क्योंकि सब लोगों को मौका मिलना चाहिए कृष्ण प्रेम पाने के लिए। लेकिन जो बुच्चर है, मांस खा रहा है, धूम्रपान मद्यपान कर रहा है, उसके लिए बहुत समय लगेगा, बिकॉज इट इज लाइक ही इज ट्राइंग टू रन विथ अ शैकल इन हिज लेग। वो अपने पैरों पे कुलाड़ी नहीं, पैरों पे चेन बांध के दौड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब इट इज गोइंग टू रिड्यूस द स्पीड, लेकिन उसके लिए भी स्कोप है। वेदा सनातन धर्म उसको भी अकोमोडेट करता है। हाँ, आपके लिए भी हम बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, आपको मांस खाना है, ठीक है, आप खा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा खाना है, ये विधान है। तो उसमें भी एक विधान है, अमावस्या की रात को काली माँ के मंदिर में रात को 12 बजे आपको खुद एक बकरी को काटना पड़ेगा, फिर उस बकरी को आप खा सकते हैं। लेकिन उस बकरी को खाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है। यू मस्ट से वन मंत्र। क्या क्या है मंत्र? खादेती मांस खादेती, ये मंत्र है। तो इसका मंत्र किसी को मतलब अगर समझ में आ गया तो फिर वो बकरी खाना मतलब उसके लिए 2-3 बार सोचेगा, क्या है इस मंत्र का अर्थ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस मंत्र, खादेती मांस खादेती। इसका मतलब है, हे काली माँ, तुम्हारे बच्चा जो बकरी है, मैं भी आपका बच्चा हूँ, ये भी आपका बच्चा है, मेरे जीभ के तृप्ति के लिए मैं आज इसको काट के खाने वाला हूँ। आप अगले जन्म में खा देती मांस खा देती, अगले जन्म में इन द नेक्स्ट लाइफ ये बकरी जब दूसरे जन्म में आएगा, और मैं जब, क्योंकि मैं पाप कर रहा हूं, मैं भी दूसरे जन्म में आऊंगा, ये बकरी मुझे खा सकता है मुझे अगले जन्म में। सी दिस इज द प्रेयर। अगर ये प्रेयर किसी को मालूम हो गया, क्या वो मतलब फिर खाने के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा ना, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं सोचेगा। हाँ, लेकिन वो तमोगुणी है, उसको वो भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बोलते बोलते धीरे 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 वो भी शुद्ध हो जाएगा। वो फिर मांस खाना छोड़ देगा, मद्यपान करना छोड़ देगा, फिर वो सोचेगा अब मुझे क्या करना चाहिए, नेगेटिव हैबिट्स छोड़ के अब व्हाट इज अ पॉजिटिव हैबिट। सो सनातन धर्म gave a chance for everyone. It never rejected anyone. So because men are so deeply absorbed in bodily concept, क्यों सनातन धर्म सबको accommodate करता है? Because of this. They are so deeply absorbed in bodily concept. These sacrifices are so arranged. इसीलिए क्योंकि सब लोग देहात्म बुद्धि में इतना गहरा जा चुके हैं, तो उनको भी मौका देने के लिए ये सब विधि विधान है। क्योंकि मांस खाना तो पाप है, तो सनातन धर्म क्यों अलाउ कर रहा है? क्यों अलाउ नहीं करेगा तो वो जाएगा कहाँ? तो उसका तो बुद्धि में है अभी खाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको तुष्टिकरण कर रहे हैं कि आप खा सकते हो। उसको बोल रहे देखो भाई खा सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क है, और रिस्क ये है कि तुम्हें अगले जन्म में आना पड़ेगा, और अगले जन्म में तुम्हें कोई काट के खाएगा, यही प्राणी आएगा तुम्हें काट के खाने के लिए। तो धीरे धीरे उसको ज्ञान भी दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज वी आर डॉक्टर्स, वी कैन टेल, अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, आप उसके ड्रग को छीन लोगे, उसके सिरिंज को छीन लोगे, आप तो सोच रहे होंगे आपने बहुत बड़ा मतलब तीर मार दिया, उसके लिए आपने अच्छा कर लिया। नहीं, उसके लिए वो विड्रॉल सिम्टम्स के थ्रू गुजरेगा, पागल सा बन जाएगा वो, और लोग और समाज के लिए वो और ज्यादा हानि करेगा। तो इसके लिए क्या है, धीरे 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 ड्रग एडिक्ट को धीरे 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 रिहेबिलिटेट करना चाहिए। सो दैट इज द मेथड अडॉप्टेड बाय सनातन धर्म ऑल्सो। एक म्लेच्छा चंडाल को भी धीरे 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 ब्राह्मणत्व दिलाना है, और ये पॉसिबल है। चंडाल भी ब्राह्मण बन सकता है ज्ञान से, बोधन से, सही गुरु मिलने से, ज्ञान मिलने से वो शुद्ध होके बन सकता है। But all of them are recommended for ultimately bringing about liberation from the body. जो भी यज्ञ है, जो भी ऑस्टेरिटी है, जो भी विधि विधान है, अल्टीमेट गोल क्या है?
मोक्षदायक थे, मोक्ष प्राप्त करने के लिए और भगवान कृष्ण की प्रेम प्राप्त करने के लिए। सो दिस इज कंफर्म विद द लॉर्ड हियर विद फ्रॉम हिज ओन माउथ। भगवान खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों के कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं नात्र विमोक्ष से। केवल ये जानकारी रखने से विमोक्ष मोक्ष मिलेगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जानकारी समझ में परिवर्तन होगा समझदारी से फिर वो कार्य रूप में लेके आएगा, और कार्य रूप में जब लेके आएगा धीरे धीरे वो बुरे जो उसके हैबिट्स है वो छोड़ देगा। बैड हैबिट्स ही विल लिव and good habits he will cultivate. So we will move ahead to shloka number 33, sorry. We're doing shloka number 33. So Krishna is now talking about the hierarchy of sacrifices. तो अनेक त्याग हैं, अनेक यज्ञ हैं और उनका भी लेवल्स हैं। ये लोअर लेवल का, ये मध्यम लेवल का, ये हायर लेवल का। Let's see what it is. Shreyam dravyamaya yajnat nana yajna parantapa sarvam karma kilam partha nane parisamapyate. See how wonderful, how logically and sequentially Krishna is taking us. धीरे धीरे एक एक द्वार हमें खोलते जा रहे हैं। जैसे वैकुंठ के 7 द्वार हैं, यहाँ ज्ञान के द्वार को एक एक करके कृष्ण भगवान, Krishna is opening for us, and by this drop by drop knowledge, one day we'll have an ocean of knowledge. So what is the meaning of this shloka? We will study here. Shreyam Dhavyamaya Yajna, O chastiser of the enemy, Parantapa, हे जो शत्रुओं का मतलब मात देने वाला अर्जुन, the sacrifice of knowledge is greater than the sacrifice of material possessions. ज्ञान यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ से बेहतर है। जो हम दान देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, उससे बेहतर है ज्ञान को दान करना या ज्ञान का यज्ञ को करना। The son of Partha, a Parth, after all, the sacrifice of work culminates in transcendental knowledge. क्योंकि दान देते देते एक दिन ज्ञान आ जाएगा, तो इसीलिए ज्ञान अगले स्तर का यज्ञ है। और जो द्रव्यमय यज्ञ है, चैरिटी इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ यज्ञ। द नेक्स्ट लेवल ऑफ दैट इज ज्ञान यज्ञ। सो द पर्पस ऑफ सैक्रिफाइसेस इज टू अराइव एट द स्टेटस ऑफ कंप्लीट नॉलेज। तो सारे यज्ञ अंत में हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की ओर लेके जाता है। कुछ धीरे धीरे, कुछ फास्टर, some faster, some slower. The sacrifice of then to gain release from material miseries, और उससे क्या होगा, भौतिक कल्मशों से हमें मुक्ति मिलेगा। And ultimately to engage in loving transcendental service to the Supreme Lord in Krishna consciousness, और अंतिम में कृष्ण प्रज्ञा, पूर्ण तरीके से कृष्ण प्रज्ञा, कृष्ण भावनामृत में हम रखे कृष्ण राधा कृष्ण का हम सेवा कर सके। यही सारे यज्ञ का अंतिम लक्ष्य है। Nonetheless, there is a mystery about all these different types of sacrifice. फिर भी ये सब निगूढ़ है, and one should know this mystery. लेकिन इसकी जानकारी सबको रखना चाहिए। Sacrifices sometimes take different forms. तो अनेक तरह के यज्ञ हैं according to particular faith of performer. जिस मात्रा में उसका श्रद्धा है, उस मात्र का वो यज्ञ कर सकता है। उससे ऊंचा यज्ञ वो कर ही नहीं सकता, बिकॉज उसको रास ही नहीं आएगा। उससे नीचे वाला यज्ञ करेगा तो वो घाटे का सौदा कर रहा है। सो एंड वंस फेथ रीचेस द स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, धीरे धीरे दिव्य ज्ञान की तरफ वो बढ़ेगा। The performer of sacrifices should be considered more advanced than those who simply sacrifice material possessions. तो जो ज्ञान यज्ञ कर रहा है, वो द्रव्यमय यज्ञ जो कर रहा है उससे बहुत गुना बेहतर है। And sacrifices remain on the material platform and bestow no spiritual benefit. और जब केवल द्रव्यमय यज्ञ ही करता रहे, केवल दान 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 करेगा, तो वो उसी स्तर पे रहेगा,
उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा, उसको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। रियल नॉलेज कल्मिनेट्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब जो सच्चा ज्ञान हमें मिलेगा, हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाएंगे। द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये दिव्य ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर है, राधा कृष्ण का आराधना करना। विदाउट द एलिवेशन ऑफ नॉलेज सैक्रिफाइस आर सिंपली मेंटल एक्टिविटीज। और अगर हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे, धीरे धीरे भगवान राधा कृष्ण की पूजा की ओर हम नहीं जा रहे, उनकी सेवा की ओर हम नहीं जा रहे, श्रम ये वही केवलम, हम केवल समय व्यर्थ कर रहे दान दे दे के। When, however, they are elevated to the level of transcendental knowledge, all such activities enter into spiritual platform. और दिव्य ज्ञान के स्तर पे जब आ जाएंगे तो आध्यात्मिक मतलब सीढ़ी को चढ़ना प्रारंभ हम करेंगे। उससे पहले द्रव्यमय यज्ञ दान दक्षिणा करने से भौतिक स्तर में ही है। उससे जो ज्ञान मिलेगा, जब ज्ञान से प्रारंभ करेंगे हम एक्चुअली आध्यात्मिक सीढ़ी को चढ़ना प्रारंभ करते हैं। Depending on differences in consciousness, sacrificial activities are sometimes called karma kanda, fruitive activities. तो जो सबसे नीचे स्तर वाला यज्ञ है जो वेदों में दिया गया है, वो क्या है? वो कर्म कांडा है, that is fruitive activities, मतलब प्रतिफल देने वाला कार्य हमारे लिए, हमारे जिंदगी के लिए हम जो यज्ञ करते हैं उसके लिए। Sometimes ज्ञान कांड, knowledge in the pursuit of the truth, अगले स्तर पे ज्ञान कांड पे आते हैं, और जो अंतिम स्तर में है वो उपासना कांड। It is better when the end is knowledge। तो इसीलिए जब ज्ञान प्राप्ति होता है कोई कार्य से, वो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ होता है, क्योंकि वहां से हमारे आध्यात्मिक प्रगति प्रारंभ होता है। So we will move ahead with the next shloka, which is the theme of today. The theme of today was what? How do we search for a spiritual master? हम एक आध्यात्मिक गुरु को ढूंढे कैसे, और क्या प्रोसेस है, और उन ढूंढने के बाद हमें क्या करना चाहिए, जब वो हमें मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें बता रहे। खुद भगवान बता रहे कि गुरु की आपको शोधन करना चाहिए, फिर उनके शरण में जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, तो ऐसे ज्ञान प्राप्त करके, शोधन करके, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो inquire from him submissively, तो उनसे आप प्रश्न पूछिए। गुरु के पास जाने के बाद एक मतलब ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। We must never follow anybody blindly. We must ask questions, but the question should be in the mode of submissive hearing, in the sense you want to know the answer, not that you're trying to question the spiritual master. आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? Not this way. आप ऐसे बोल रहे हो, प्लीज आप मुझे बताइए ये ऐसे करने से कैसे होगा, विथ सबमिसिव मोड। इस मोड में परिप्रश्न सेवया, फिर उनके सेवा करने से, एक गुरु की सेवा करने से, सो कृष्णा इज टेलिंग अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर, तद्विद्धि, जाइए उनके पास, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, केवल परिप्रश्न नहीं, प्रणिपातेन, सबमिसिवली इंक्वायर फ्रॉम हिम, फिर रेंडर सर्विस अनटू हिम, आप उनकी सेवा कीजिए, ऐसे ही नहीं मिलेगा ज्ञान आपको। The self-realized soul can impart knowledge unto you. ये जो गुरु है आपको ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम, उन्होंने सत्य को देखा है। ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, because he has seen the truth, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है, आपको सत्य का दर्शन करा पाएंगे। जिसने सत्य को ही नहीं देखा है वो आपको क्या दर्शन कराएगा? तो हमें ऐसा गुरु चाहिए जो सत्य का दर्शन कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन आएगा, हमें कैसे पता है सत्य का दर्शन किया? इसीलिए हमें सेवा करना है, और
इसीलिए हमें उसको परिप्रश्न से, प्रणिपात से प्रश्न पूछ के ज्ञान प्राप्त करना है, फिर हमें उनके शरण में पूरी तरह जाना है. सो द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अनडाउटेडली डिफिकल्ट. जो आध्यात्मिक पथ है वो इट इज डेफिनेटली कठिन कार्य है. इट इज डेफिनेटली not an easy path. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master. भगवान खुद बोल रहे हैं, मुझे प्राप्त करना है तो आप गुरु के पास जाइए. Like the government is telling, if you want to get the benefit of the government, go to a government office. वहां पे मेरे कर्मचारी बैठे हैं, तो वो आपको बेनिफिट्स दिलाएंगे. तो गुरु आध्यात्मिक जगत के एम्बेसडर है, वो ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो उनके पास जाने से हम स्पिरिचुअल, इज लाइक द एम्बेसी, वीजा सेंटर. तो उस वीजा सेंटर में जाने से हमें वीजा मिल सकता है आध्यात्मिक लोक के लिए. सो नो वन कैन बी अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सक्सेस. और गुरु भी यही मार्ग उनको भी अपना, मतलब उसका हिस्ट्री में उनको भी ये मार्ग में चल के दिखाना होता है. मतलब he also should have followed the same process. That is called disciplic succession. Then he can now make us follow the same process under his guidance. The Lord is the original spiritual master. जो असली आदि गुरु कौन है? जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं है. And a person in disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. और जो ये परंपरा में आ रहा है, गुरु अपने गुरु से जो ऐसे सीख के आया है, वो आपको दर्शन दे सकते हैं भगवान का. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process. अपना ही कुछ सिस्टम्स बना के कोई गुरु नहीं बन सकता. And the भागवतम says धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीता. जो भगवान ने रूल्स और रेगुलेशन दिया है वेदों में, वो धर्म है. अपना अपना मतलब के रूल्स बनाना वो धर्म नहीं है. मतलब दैट पर्सन इज चीटिंग यू. गुरु के वेश पहन के अपना जो तर्क बताएगा वो एक चीटर है. The path of religion is directly enunciated by the Lord. भगवान खुद धर्म के बारे में यहाँ भगवत गीता में बोल रहे हैं. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help one progress in spiritualization. मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, ये सब बोलने से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा. आपके हिसाब से क्या होता है? मेरे मन के हिसाब से क्या होता है? हमारा मन आखिर जानता क्या है? कुछ भी नहीं जानता है. तो इट इज लाइक ट्राइंग टू टॉक अबाउट एयरक्राफ्ट without having even the slightest knowledge about aircraft. So that is not going to be of any help to us. One has to approach a bona fide spiritual master to receive knowledge. गुरु के पास, एक अधिकृत गुरु के पास जाना बिल्कुल जरूरी है. बहुत लोग पूछते हैं क्या गुरु का होना जरूरी है? क्या हम भगवत गीता पढ़ के ज्ञान नहीं पा सकते? सर, जब आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, किसी ने लिखा है ना, तो फिर आप उसको फॉलो कर रहे हो, वही आपका गुरु है. हम सब श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता फॉलो कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी हमारे ऑटोमेटिकली गुरु बन गए. अब मुझे प्रभुपाद की मतलब मुझे प्रभुपाद नहीं चाहिए, कोई और चाहिए. मैं राधा कृष्ण, महात्मा गांधी जो लिखा है वो भगवत गीता पढ़ूंगा, ठीक है. फिर महात्मा गांधी आपके आध्यात्मिक गुरु बन जाएंगे. और पहली बात तो महात्मा गांधी इज नॉट ए क्वालिफाइड आध्यात्मिक गुरु. ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन, very good man, but he was not a qualified spiritual master. तो हमें धोखा नहीं खाना है. So next, satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. जब हमारे गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं. When the government servant is satisfied with all the certificates and documents you are having, with all the works that you have done, जब वो ठप्पा लगाएगा, हाँ ये क्वालिफाइड है, तब आप आगे जा सकते हैं. कृष्ण देखेगा प्रभुपाद जी का सील है इस पे, हाँ ठीक है, गोलोक आ सकते हैं. नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते. ऐसे बोल, वीसा पे स्टैंप नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा.
सम अधिकृत गुरु होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग प्रभुपाद इज द ओनली गुरु। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज के जमाने में केवल प्रभुपाद जी ही सच्चे गुरु हैं। अनेक सारे ऐसे गुरु हैं जो सच्चे गुरु हैं, लेकिन हमें उनको ढूंढना चाहिए। लेकिन जब आपको मिल ही चुके हैं, मतलब आपको एटीएम चाहिए था, आपको पास में एक एटीएम मिला है, तो आपको जाके बस पैसे निकालना है। अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे उस एटीएम में जाना है, उस एटीएम में आपको तो सोना तो नहीं मिलेगा, वही नोट मिलेगा आपको, जितना आप टाइप करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, सिस्टम वही है। So if that is the case, when you already have got Prabhupada in your life, why you have to look any further? And Prabhupada is a pure devotee, bona fide spiritual master, और वीजा स्टैम्प उनके पास है, तो सोचना क्यों है? Further, unless there is submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. उपलक्ष्य में बैठ के गुरु के, लेकिन उनके टीका करना, उनको मतलब अवहेलन करना, और जो बोधन कर रहे हैं उनको ना सुनना, मतलब जब श्रद्धा नहीं है, आप गुरु के पास भी बैठेंगे, आप अंधकार में ही रहेंगे। ठीक है, कुछ फायदा तो मिलेगा, सम causeless mercy the spiritual master can show you, but that is not going to take you very far, very long. Why? Because spiritual master's blessing is not effective, क्योंकि आप उसको होल्ड ही नहीं कर सकते। मतलब बंदर को आप सालिग्राम देंगे तो क्या वो पूजा करेगा उसका? तो वो सालिग्राम को लेके वो जो फ्रूट्स मिलता है उसको मतलब तोड़ने के लिए यूज करेगा। बंदर सालिग्राम को फल को तोड़ने के लिए यूज करेगा, उसको पता नहीं सालिग्राम का क्या महत्व है। ठीक वैसे ही हमारा हालत हो जाएगा। गुरु के पास है लेकिन महत्व नहीं जानते, उनसे ज्ञान प्राप्ति नहीं किया, तो शालिग्राम से फल को कूटने जैसा हो जाएगा। So finally, here Prabhupada says in the purport, the spiritual master automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. जब हम सेवा करेंगे, परिप्रश्न करेंगे, तो जब हम causeless mercy पाएंगे प्रभुपाद जी का, गुरु का, तब हमें ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। So in this verse, both blind following and absurd inquiries are condemned. तो अंधा होके किसी को फॉलो नहीं करना है, और ऑन द ऑपोजिट अवहेलन करके भी किसी का मतलब किसी को नीचा नहीं दिखाना है, कोई आध्यात्मिक गुरु को, दोनों हमारे लिए डेंजरस है। We should not be blind followers. At the same time, we should not be so speculative that we are not believing anything that he is telling. We should use our brain and be open to what is being told. We can do our enquiry. So finally, a bona fide spiritual master is by nature very kind towards the disciple. तो एक गुरु, अधिकृत गुरु शिष्य के ऊपर अपार कृपा रखते हैं। Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. तो ऐसे परस्पर जब गुरु और शिष्य सेवा, जब शिष्य करेगा और सेवा जब स्वीकार करते गुरु, तब ज्ञान का एक्सचेंज होगा। So thank you very much for joining me in this session. Tomorrow also we'll be having a Bhagavad Gita session. Rekha Mataji, immediately after, if you're online, immediately after this session, when we log off now in next 30 seconds, you can log in again in the same login. I will be available online. You can ask your question. Anybody also has questions, they can again log in this login and you can ask your questions. So thank you very much for joining me today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.